Good morning, students. Hope you all are doing well in this pandemic and you are also studying at your home. So, dear students, uh, जैसे कि आपको पता है कि हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स को सीख रहे हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि द स्टूडेंट्स हु आर well in their plus two economics, they didn't face any difficulty while reading these components and concepts. So we are going through the various components as per national income in your topic. So, dear students, today we will discuss the concept of various types of incomes calculated in it. So, in our last class, what we discussed about national income, let us revise some components, and after that, we will discuss in brief the various methods of calculating national income. So let us start. Um, Yet certain persons haven't joined us in this class. So for sake of your convenience, you may click on three right dots in your screen, and there is option of uh, there are four options in it: in call messages, share screen, turn on captions, report a problem, and one thing is that ki if you have any query and you want to ask something, even you may also turn on your mic while I am speaking, and you may ask it properly. And suppose if you have a shy for speaking in the class, you may also text your query in call messages. And the third option is turn on captions. When you click on this option, whatever I will speak here in English, it will automatically written here for sake of your convenience. So, dear students, Pooja, Avneet, Rajan, and Priya. It's Avneet. So, let us start. Whatever we discussed, one new person is coming at sync. So, dear students, again I am saying kindly come in time. And although you know that your class was at 10:50 a.m., so again I am saying if you face any difficulty while understanding the topics in English, you may turn on your you may turn captions on, and if there is a particular point or thing, you may take screenshot from it. And in last, I will show you the various slides. So, dear students, let us discuss the brief components of national income. And also, I would like to say that key also encourage your class fellows or classmates to be present in the class. After that, few students are only who faces problem while in examination. So it's better to utilize your this time in studying various components. And I would also suggest you to attend all the classes by all teachers. So let us study what we discussed in our previous classes or whatever we discussed in last week. So dear students, first we discussed what is national income. सो एज यू नो दैट कि जो नेशनल इनकम होती है वो पूरे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए एक इकोनॉमी में वो मेजर करता है. फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस यू में आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दीजिए एंड फॉर लिटिल बिट आप ज़्यादा स्क्रीन और मोबाइल को थोड़ा दूर बनाइए, दूरी बना के रखिए. फर्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज नेशनल इनकम. Again, I am saying for sake of your convenience, you may turn on the captions, and whatever I will speak in English, it will automatically written here. And for making notes, you may take screenshots जो भी वहाँ पर printed show होगा. So, what is national income? As you know that कि national income measures the total value of goods and services produced within the economy over a period of time.
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में पूरे साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है, that is included in national income. So national income measures the total value of goods and services produced within the economy over a period of time. अब over a period of time का क्या मतलब है? As you are basically from commerce background, and you know that कि various commercians, various institutions and various companies, various firms, they just follow accounting year. So accounting year starts from 1st April uh, till 31st March, तो 1 अप्रैल से 31st मार्च तक जो भी हमारा ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर में आता है। तो उस ईयर में पूरे देश में ओवरऑल कितना आपका गुड्स एंड सर्विसेज बना है। अब आप बोलोगे सर इनकम है ये, तो नेशनल इनकम में हम यहाँ आप एक तरफ से बात कर रहे हैं, यू आर सेइंग अबाउट कि एक तरफ से कि इनकम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम, बट दूसरी तरफ से वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताओ, जो दुकानदार है उसकी इनकम तब आएगी जब उसका सामान बिकेगा, उसकी इनकम तब आएगी ना जब उसका सामान बिकेगा। तो वो जो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बिकी है उससे उसको पैसा आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट है, व्हाई इज नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट, व्हाई वी स्टडी नेशनल इनकम, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। Why is national income important? Because it measures the level and rate of growth of national income. National मतलब कि जब भी हमारे को ये फाइंड आउट करना है तो इसके काफी रीजंस है। फर्स्ट है when we require to know the economic growth and where a country is in the business cycle. अब in our last classes we discussed on a data what is the GDP of India and various nations. तो जीडीपी की बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया इज इन 5th रैंक, और उसकी हम जीडीपी देख रहे थे कि इंडिया, जर्मनी, फ्रांस आपस में कितनी ओवरलैप हो रही है जीडीपी। और यूएसए, चाइना को तो खैर हम छू भी नहीं सकते, इतनी उनके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अपने इंडिया, अपनी कंट्री में तो बेचते हैं, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत बेचते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत मैटर करता है। किसी देश की नेशनल इनकम अगर अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, तो सिंपल सी बात है, इट चेंजेस द एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन भी यही एक मेन रीजन है। देन डियर स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहीं अमीर और अमीर तो नहीं होता जा रहा, गरीब और गरीब तो नहीं होता जा रहा। in present scenario what we are facing, there is a health issue. Most state governments and central governments just spending their budgets on health issues, health matters, uh, production of uh, production of large type of sanitizers, mask, vaccines, काफी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो वी आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन मेथड। अब वही जो प्रोडक्शन होगा वहाँ क्या होगा, वो बिकेगा। वो बिकेगा कहाँ पर, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स में बिकेगा। तो उससे क्या होगा, एक एक पर्सन को इनकम आएगी और दूसरे पर्सन का वो एक्सपेंडिचर होगा। कुछ चीजें आपके लिए इनकम होती है, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब मान लो मेडिकल स्टोर्स वालों के लिए तो वो इनकम है क्योंकि वो बेचेंगे तभी इनकम आएगी, बट इससे पहले उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया है। अगर वो एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से आएगी। तो हम बार बार बोल रहा हूँ, वी यूजुअली टेक 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम तीनों को अगर अच्छे तरीके से देखें तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज थ्री आर सेम। अब हाउ दीज थ्री आर सेम, बिकॉज यू नो दैट की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम। जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इनकम जनरेट करवाता है। एंड इनकम गिव राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती रहेगी आप उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करते रहोगे, और जब आप डिमांड करते रहोगे एक्सपेंडिचर को, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आप उस एक्सपेंडिचर को फर्दर इन्वेस्ट करोगे। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास पैसा है, तो उसके पास अभी पैसा है, उसने वो खर्चा किया, एक्सपेंडिचर करके उसने कुछ चीज बना ली, तो प्रोडक्शन किया, उसी प्रोडक्शन को दोबारा बेच दिया, फिर उससे इनकम आई, फिर उसी इनकम से दोबारा उसने प्रोडक्शन किया, फिर बेच दिया। तो ये एक साइक्लिकल फ्लो चलता रहता है, और इसी साइक्लिकल फ्लो के थ्रू हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम।
कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। तो एक बात तो पता लग गई कि इसमें हमारे को ये देखना पड़ेगा कि पूरे देश के लोगों की इनकम कितनी, हर सेक्टर से कितनी इनकम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि पीएस प्रिया, पूजा, रजत, अवनीत, एच सिंह हैज बीन लेफ्ट। सो जैसे कि आपको पता है कि देयर आर थ्री सेक्टर्स इन अवर इकोनॉमी। these are primary sector. There are three sectors in our economy. First is primary sector, then secondary sector, and third one is tertiary sector. Primary sector में क्या आता है? Yes, PS Priya, tell me what is included in primary sector. PS Priya, turn on mic and say something about primary sector. No idea. Pooja, are you listening? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बेटा? गुड मॉर्निंग। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? हाँ जी बेटा। कोई बात नहीं बेटा। राजन, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? राजन भी नहीं सुन रहा। सुन रहा है। हम्म। बोलो बेटा। हम्म, चलो ठीक है। अवनीत कौर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? राजन माइक बंद कर लीजिए बेटा आप। अवनीत कौर, टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी अबाउट प्राइमरी सेक्टर। ओके, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। और आपने कभी, मान लो आपके गन्ने के खेत है, सपोज गन्ने के खेत है। तो जो गन्ना है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है। वो बिकता कहाँ पर है? वो, अब मैं आपको रियल सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। पहले एग्जांपल देता हूँ। अब शुगर केन है। ठाकुर राजपूत। अब जो शुगर केन है, शुगर केन क्या है? शुगर केन, सलाम इन हॉस्पिटल के पास। अवनीत कौर, व्हाट हैपन बेटा? आर यू वेल एंड ओके? व्हाट हैपन बेटा? आई एम ओके सर। ओके बेटा, नो इश्यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन हॉस्पिटल। If you are doing some work, you may exit। आप लीव कर सकते हो बेटा। एंड यूज हैंड सैनिटाइजर, मास्क पहन के रखो और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ देर इज ए प्रॉब्लम एंड यू मे एग्जिट बेटा। इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू मे एग्जिट। आप जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप ध्यान रखो अपना और सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर की बात कर रही थी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो हमें रॉ मटेरियल देता है, जिन्हें एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर चाहता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ने गन्ना बनाया, प्रोडक्शन हुआ गन्ने का। अब उसी गन्ने को हम कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। और तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। प्यारे बच्चों, टर्शरी सेक्टर होता है जो कि, अब वो चीनी आपके घरों में कैसे पहुंची? अब आप सुबह चाय बनाते हो या कॉफी बनाते हो या दूध बनाते हो या और भी काफी मीठी चीजें बनाते हो, आपके पास चीनी होती है। हैव यू एवर थॉट कि ये चीनी मेरे पास कैसे आई? अब आप बोलोगे कि मैंने तुम बाजार से खरीदी, मैंने अपने दुकान पास वाले दुकान से खरीदी। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि उस दुकानदार के पास कैसे आई। अब आप बोलोगे सर होलसेलर ने दी उसको बड़े बड़े थैलों में भर के।
चलो ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि होलसेलर के पास कैसे पहुंची वो चीनी। अब आप बोलोगे सर होलसेलर ने इंडस्ट्री से खरीदी होगी चीनी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कोई ना प्रिया, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आई विल रिपीट डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो आपने घर पे चाय बनाई आज, या आपने कॉफी पी, या आपने कोई मीठी चीज शरबत बना लिया या नींबू पानी बना लिया, आपने उसमें चीनी डाल दी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपसे वो चीनी कहाँ से आई, आपके घर पे वो चीनी कहाँ से आई। आप बोलोगे सर वो चीनी हमें मैंने बाजार से खरीदी, मेरे पास मेरे घर के साथ शॉप है, मैंने वहां से खरीदी। चलो अब क्वेश्चन उठता है कि वो चीनी उस शॉप में कैसे आई। तो आप बोलोगे सर वो चीनी उस शॉप में आई, दुकान वो जो मेरा दुकानदार है वो उसने होलसेलर से खरीदी होगी, तो होलसेलर ने वो चीनी खरीदी। तो अब क्वेश्चन है कि होलसेलर के पास वो चीनी कहाँ से आई। तो आप बोलोगे सर होलसेलर ने इंडस्ट्री से चीनी खरीदी होगी। अब सवाल उठता है कि इंडस्ट्री के पास वो चीनी कहाँ से आई। अब इंडस्ट्री के पास चीनी तो आई नहीं होगी। इंडस्ट्री में क्या होगा, फैक्ट्री में क्या होगा, गन्ने आए होंगे, उन्होंने उस गन्ने को क्या किया होगा, उस गन्ने को किसी फार्मर से खरीदे होंगे। अब आप देखते हो कि आपके पंजाब में ट्रैक्टर भर भर के गन्ने जाते हैं, तो गन्ने कहाँ जाते हैं, वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं। दे यूजली गो टू द इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो वो जाते हैं वहां पर फर्दर प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में। और अब वो गन्ने कहाँ है, वो है एग्रीकल्चर में। तो सिंपल सी बात है कि जब खेत में गन्ना उगा है तब आपके घर पे चीनी आई है। अगर वो गन्ना ना होता तो आज आर्टिफिशियल शुगर खा रहे होते, गुड़ कहाँ से खा रहे होंगे, शक्कर कहाँ से खा रहे होते। तो हमारे देश में तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जहां पर चीजें बनती है, जहां रॉ मटेरियल बनता है। अब मैंने शुगर की बात की, आप गेहूं ले लो। अब जो बिस्किट है, आप बिस्किट खा रहे हो या आप रोटी खा रहे हो, आज घर पे बैठ के आपने दोपहर का खाना खाना है, आपने चावल खाने हैं, तुसी कनक दी रोटी, मक्की दी रोटी, उसका सारा प्रोसीजर पता कैसे है। चलो मेरे तो कोई खेत वगैरह नहीं है, मैं तो घर बाजार से आटे की थैली लेता हूँ एक। तो अब वो आटे की थैली, फिर वही प्रोसीजर आ जाएगा, घूम घुमा के हम फिर वही बात कर लेंगे कि हाँ आपने आटे की थैली रिटेलर से ली, रिटेलर ने होलसेलर से ली, होलसेलर ने इंडस्ट्री से ली, इंडस्ट्री वालों ने वो किसानों से गेहूं लिया था, उसको पीसा, कुछ मिनरल्स वगैरह बीच में डाल के वो हमारे को दे दी। बात फिर वही आ गई। अब इसी हिसाब से प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर हुआ फार्मर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर रॉ मटेरियल बना, कच्चा माल बना। फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर आपका आ गया इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो तीसरा है वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब आपके घर पे तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आया ना। अब आपको क्या पता वो जो अनाज है वो किस स्टेट में बना होगा। आपने आपके हाथ आज आज आपने जो आज रोटी खाई, या आप जो अब रोटी खाओगे या जो खाने वाले हो, वो किस स्टेट से वो आटा बन के आया, वी कांट नो ना। अब होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो हम में से हमारी देश की पॉपुलेशन कुछ प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। हाँ आप बोलोगे सर हाँ जी, मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। पहले तो किसान सिर्फ अनाज और गेहूं ही बनाता था, बट आज की डेट में फूल वगैरह, सब्जियां उगाता है, फल फ्रूट वगैरह, वो सारे प्राइमरी सेक्टर से है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, बड़ी बड़ी वो है इंडस्ट्रीज, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। मतलब कि वो कोई रॉ मटेरियल थोड़ी ना दे रहे, और वो किसी भी चीज को कन्वर्ट थोड़ी ना कर रहे। कुछ लोग, अब ये आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो ये क्या है, ये भी एक इंडस्ट्री से ही बन के आया ना, ये भी किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ होगा। इसका रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, प्लास्टिक, चिप्स, मेमोरी डिवाइसेस, है ना। और जो फिर आपका लास्ट है,
जिसमें बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, वो सब टर्शरी सेक्टर है। तो इन तीनों सेक्टर्स की इनकम को कंसीडर किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये 3 सेक्टर्स क्यों पढ़ाए आज हमें? तो इन तीनों सेक्टर्स की ही इनकम को नेशनल इनकम में लाया जाता है। जब भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे हम बोलेंगे कि इनकम रिसीव्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, इनकम रिसीव्ड बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड इनकम रिसीव्ड बाय टर्शरी सेक्टर। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो पूजा बेटा, अब आप मुझे बताइए तीनों सेक्टर्स क्या होते हैं विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर आप सारे खत्म करते हो उसको बताते हुए। ठीक है बेटा, वेल डिफाइंड। ऐसे ही होप आपको पीएस प्रिया एंड राजन आपको भी समझ आ गया होगा। टर्शरी ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਵਿਸ प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अब वेयर हाउस है, एडवर्टाइजमेंट है, बैंक है, इंश्योरेंस है, तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जहां पर प्रोडक्शन होगा वहां नहीं पहुंचेगा। सेकंड, अगर आपका इंडस्ट्री सेक्टर नहीं, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा या बैंकिंग नहीं होगा तो मनी की हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई क्रेडिट की बात नहीं कर सकते, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो पूरे देश की इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे इंडिया में ज्यादा क्या है, लोग प्राइमरी सेक्टर पे काम करते हैं, ज्यादा एग्रीकल्चर है, हर दूसरा बंदा एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है। अब जापान चाइना वगैरह में क्या है, लोग एग्रीकल्चर में नहीं काम करते, वो करते हैं इंडस्ट्रीज में काम, अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और चाइना वगैरह में लोग क्या करते हैं, वो भी सेम ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तब उनकी इकोनॉमी इतनी हाई है। हमारे देश में तो वही तो बात है कि 10 के 10 बंदे खेतों में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा। तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पर्सन्स खेतों में लगे। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था इन अवर लास्ट सेमेस्टर। तो उसमें देखा था कि जब किसी खेत में एक बंदे की जरूरत है तो उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, 2 की जरूरत है तब भी उतना हो रहा है, 3 की जरूरत है, 1 की जरूरत है, 3 काम कर रहे हैं तब भी उतना प्रोडक्शन है। अब जैसे जैसे पर्सन बढ़ाते जाओगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, बट एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपका प्रोडक्शन घटने लग जाएगा ड्यू टू overlapping of the peoples in that particular sector. So now, as I stopped there, I would like to continue from there. Production of goods and services generates income, and income drives to demand for goods and services. Demand gives rise to expenditure, and expenditure gives further rise to production of goods and services. This is a circular flow of production, income and expenditure. तो circular flow है। अब प्रोडक्शन होगा तो एक्सपेंडिचर, इनकम आएगी, इनकम से फर्दर एक्सपेंडिचर आएगा, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के भी 3 ही मेथड होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्लोज नेशनल इनकम कैन बी एनालाइज्ड एट एज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, as a flow of income and as a flow of expenditure on goods and services। तो फ्लो है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बात कर रहे थे हम प्रोडक्शन मेथड की कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो आज इसी मेथड को हम अच्छे से समझते हैं। फर्दर you may understand this chapter from your books that you are following. So steps in final product approach में हम सबसे पहले क्या करते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं कि पूरे देश में कितने फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री गिव्स द एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
तो सानू पूरा पता लग जाता है कि हाँ प्रोडक्शन मेथड है, पूरा देख लेंगे कि हाँ पूरे देश में प्रोडक्शन कितना हुआ। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ये डाटा कैसे आएगा? अब हमें कैसे पता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने नमक की थैलियां बनी है, कितने आटे की थैलियां बनी है, कितने क्विंटल चीनी बनी है, कितने क्विंटल राइस बना है, कितने क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है। ये अब देखो गेहूं अनाज वगैरह जो भी है आपके दालें वगैरह, ये तो मंडी बोर्ड में इनका सारा रिकॉर्ड होता है। बाकी अब जो इंडस्ट्री बना रही है उसके पास तो रिकॉर्ड होगा ही ना कि हाँ हमने 50 क्विंटल नमक बनाया, हमने 50 क्विंटल मशीनरी सॉरी चीनी प्रोड्यूस की। तो वो डाटा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो क्योंकि पता है कि आपको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, सब कुछ वहीं से आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री गिव्स द एस्टिमेट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी कितनी है मार्केट प्राइस में, उससे हम निकाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड कर देते हैं साथ में। चलो हमारे देश का तो हुआ प्रोडक्शन, बट हमारी इंडियन फैक्ट्रीज कुछ बाहर है, कुछ फॉरेन में काम कर रही है, वो भी ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है। बेशक वो माल इंडिया में भेज रही है, अपना इम्पोर्ट कराया हमने बाहर से माल, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड हुआ। तो उसमें हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट प्राइस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्यारे बच्चों जीडीपी निकाल देते हैं कि हमारा अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ। डोमेस्टिक मतलब कि जो हमारे देश में ही बना है। और जब हमारे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो हम देखते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NYFA आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, द एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी एट एमपी गिव्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी पे हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। फिर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी प्रोवाइड्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैंने तुम्हारे को कल भी बताया था कि जब जीडीपी से हमारे को एनडीपी पे जाना है तो हमारे को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ना। तो ग्रॉस तो है, हाँ हाँ सर इतना देश में बना है, बट कुछ खराब हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ हमने कुछ ऐसे ही बिक गया, तो वो भी डिडक्ट होगा। तो हमारे पास सारा कुल मिला के नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। एंड द डिडक्शन ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिव्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। At last, I will share this screenshots with you. You may write down the notes. अब इसकी रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं पूरे देश की गुड्स जीडीपी की वैल्यू कर लेते हैं कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमी, तो उसे जीडीपी निकला। जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट, जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं देन वी गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और द डिडक्शंस ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो नेशनल इनकम का ही दूसरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं। तो जब हम फाइनल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हम नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी बोलेंगे। एनएनपी एफसी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एफसी एंड मार्केट प्राइस के बारे में भी बताया था। Yet certain peoples are not joining our class. I don't know why. जब तक बच्चे रेगुलर नहीं आएंगे तो उनको काफी दिक्कत आ जाएगी। और जब रेगुलर ही नहीं है तो फिर यू नो काफी इसमें इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है एक। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन अवर नेक्स्ट क्लास। एंड डियर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को जस्ट सी देम कि attending classes is really too much important, and yet your teacher made a proper arrangement for it. So
At last, I would like to thank you people for coming in this class. Now, after a while, I am just sharing you the screenshots of the formula that we discussed. You may take screenshot from it, and for further clarification, you may direct message me on WhatsApp if you have any doubt or query. And for being thanks a lot for joining this session.